جمعرات بھی آپ کو زیارت کروانے کے لیے آئے ہیں، تو میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہیے. اندر چلتے ہیں، اندر سے زیارت کرواتے ہیں آپ کو. ہر جمعرات آپ کو زیارت کرواتے ہیں. چلیے حضرت اندر چلتے ہیں، اندر سے زیارت کرواتے ہیں آپ کو روزے کی. جو بھی آپ کی حاجات ہے مولا عباس کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو طلب کریے اور اپنی دعائیں مانگیے. مولا عباس آپ سبھی کی دعاؤں کو قبول کریں گے. مشق سکینہ لگی ہوئی ہے، جناب سکینہ کے حوالے سے دعا کریے. جہاں جہاں تک میری ویڈیو جا رہی ہے ان سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ کمنٹ کریں تاکہ پتہ رہے کہ کہاں سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تاکہ اگلی بار ان کا نام لے کے بھی مولا کے حرم میں دعا کی جا سکے. چلیے اندر چلتے ہیں. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس. السلام علیکم یا ابو الفضل العباس. بارگاہ باب الحوائج میں آپ سبھی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مولا عباس آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی مشکلوں کو آسان کرے. ہاں میرے سرکار. بارگاہ باب الحوائج دورہ اجمیر سے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، لائیو زیارت کر رہے ہیں. بارگاہ باب الحوائج مولا ابو الفضل العباس کا روزہ اور تمام مومنین سے دعا کی گزارش ہے کہ جو بھی مومنین دیکھ رہے ہیں وہ اپنی حاجات کو طلب کریں. مولا عباس کا لقب باب الحوائج ہے اور مولا عباس کے در سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا. بس خالی مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے آپ میں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. اس در سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا. جس نے جو مانگا ہے اس کو وہ مولا عباس نے عطا کیا ہے. مولا عباس کا لقب ہی باب الحوائج ہے. تو جو بھی مولا عباس کے چاہنے والے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے اور اس مقدس بارگاہ میں آ کے وہ لوگ بھی زیارت کر سکیں. اور جو بھی میری آواز کو سن رہے ہیں وہ کمنٹ ضرور کریں تاکہ پتہ رہے کہ کون کہاں سے دیکھ رہا ہے ویڈیو کو. دیکھیے لکھا ہوا ہے یا باب الحوائج. تو مولا عباس کا لقب ہے باب الحوائج اور اس در سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا. جس نے جو مانگا اس کو وہ عطا ہوا ہے مولا عباس کے کرم سے. بس آپ کو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. چلیے حضرات اگلے جمعرات کو پھر آپ کو زیارت کرائیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم اور بھائی کے لیے دعا کریے گا. چلیے ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ظالموں نے، یزیدیوں نے
میرے امام ہم سب کے امام عالی مقام کو بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا تھا، اور امام عالی مقام بھی دین اسلام کی خاطر خوشی خوشی قربان ہو گئے تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں پر مشکیزہ لگایا ہوا ہے، اور اس میں دیکھیں ایک تیر بھی لگی ہوئی ہے جو کہ یزیدیوں نے حملہ کی تھی۔ یہ مشکی دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام سونے کی پرت اوپر چڑھائی گئی ہے۔ یہ تمام پلیٹنگ جو ہے اوپر یہ سونے کی ہی ہے۔ اور تو دیکھیے جنازہ لے جایا جا رہا ہے یہاں پر، وہاں جہاں پر جنگ کربلا یعنی کربلا کی جنگ ہوئی تھی اور حق اور باطل کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تھا۔ تو بہرحال ناظرین، یہ سرزمین ہے کربلا کی، اور کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کا میدان جو اس زمانے میں تھا آج بھی ویسا ہی میدان ہوگا۔ نہیں ناظرین، آج اس میدان میں ایک شہر بسا ہوا ہے، ابھی ویسا میدان نہیں ہے، لیکن ہاں جہاں پر خاص واقعات ہوئے تھے وہاں کی نشانی الگ طریقے سے بنا دی گئی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لیفٹ سائڈ میں ایک درگاہ شریف ہے۔ یہ مقام ہے حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے بالکل اپوزٹ میں یہ ایک بڑا سا راستہ جاتا ہے، اور بالکل اس کے اپوزٹ میں جو ہے ایک اور مقام ہے یہ مقدس درگاہ شریف ہے نواسہ رسول اعظم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بھی آپ اس ویڈیو میں جہاں تک بھی آپ کی نظر جائے گی یہ تمام کا تمام کربلا ہی ہے۔ ناظرین، یہ ہے روضہ مقدسہ حضرت امام حسین کا، اور یہ روضہ ہے حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سب سے پہلے ہم اس مقام پر چلتے ہیں، حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ شریف کیسی ہے، کس خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ دوستوں، آج جمعہ کا دن ہے تو بھیڑ کافی زیادہ آئی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں اسلامک کنٹریز میں جو ہے جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے، تو یہ لوگ جمعہ کے دن ایک بڑی تعداد میں کربلا اور نجف شریف میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، یعنی حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام یہاں پر کیا گیا ہے، اور اس دروازے کا نام ہے باب امام الحسن علیہ السلام۔ اس طریقے سے اس دروازے کا نام، اس گیٹ کا نام دیا گیا ہے، اور ہر گیٹ کا نام الگ الگ رکھا گیا ہے، اور کافی سارے گیٹ اس مقام پر موجود ہیں۔ تو چلیے میں اندر کی زیارت آپ کو کروا دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک اور جنازہ یہاں سے جا رہا ہے۔ تو اندر داخل ہونے کے بعد یہاں پر جوتے چپل جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، اور ٹوکن آپ کو مل جاتا ہے، اور یہ فری جو ہے سروس ہوتی ہے یہاں کی۔ پھر یہاں پر چیکنگ ہوتی ہے اندر داخل ہونے سے پہلے۔ تو یہاں سے چیکنگ ہونے کے بعد ہم لوگ یہاں سے داخل ہو رہے ہیں، اور ناظرین یہ دونوں دربار کی جو کاریگری ہے، اندر جو ڈیزائنز انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے سجایا ہے، یہ بیان کے باہر ہیں۔ ویڈیو میں تو پورا انصاف ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی خوبصورتی میں آپ کو بیان کر سکوں، بس آپ دیکھتے رہیے، جہاں تک ہو سکے میں کوشش کروں گا آپ کو اچھے طریقے سے دکھانے کی۔ یہ دیکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے تو اندر آتے ہی سب سے پہلے 2-3 منٹ تک تو آپ چاروں طرف نگاہ گھماتے ہی رہیں گے، اور بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ کتنی خوبصورتی ہے یہاں پر، کس خوبصورتی کے ساتھ حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے پاس سجایا گیا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ پورا سیکشن جو ہے مرد حضرات کا ہے، عورتوں کے لیے الگ گیٹ ہے، الگ انٹری ہے، الگ ایگزٹ ہے، اور مردوں کے لیے الگ انٹری ہے، الگ ایگزٹ ہوتی ہے یہاں پر۔ اب آپ اندر آنے کے بعد جو ہے یہ جو آپ مقدس نظارہ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں کا مین انٹرنس ہے حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی طرف جانے کے لیے۔ اور روضہ شریف کے پاس داخل ہونے سے پہلے اوپر آپ ایک چیز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے مشکیزہ ہے۔ پرانے زمانے میں اسی میں پانی بھرا جاتا تھا، اور ٹریولنگ کے دوران اسی کو ایک باٹل کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، اور یہ چمڑے سے بناتے ہیں۔ جب میدان کربلا میں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا پیاسی ہو گئیں تو انہوں نے کہا کہ اے میرے چچا، مجھے پانی چاہیے، مجھے سخت پیاس لگی ہے،
تو حضرت عباس علمبردار جو ہے اپنے کاندھے پر اس مشکیزے کو لیتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے نہر فرات کی طرف جاتے ہیں اور پانی بھر کے لاتے ہیں، اور جب آپ واپس آ رہے تھے تو یزیدیوں نے آپ پر حملہ کر دیا اور اس مشکیزے میں جو ہے تیر مار دیے تاکہ جو ہے پانی سارا نیچے گر جائے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں پر مشکیزہ لگایا ہوا ہے، اور اس میں دیکھیں ایک تیر بھی لگی ہوئی ہے جو کہ یزیدیوں نے حملہ کی تھی۔ یہ مشکیزہ وہ نہیں ہے، بس یہاں پر ایک ماڈل لگایا ہوا ہے، یہ وہ مشکیزہ نہیں ہے جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا تھا۔ بس سمجھانے کے لیے اور اس قربانی کو یاد دلانے کے لیے یہاں پر یہ چیز جو ہے یہاں پر لگائی ہوئی ہے۔ اور یہ جو دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام کے تمام سونے کی پرت اوپر چڑھائی گئی ہے، یہ تمام پلیٹنگ جو ہے اوپر یہ سونے کی ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مینار اور گنبد کے اوپر بھی سونا ہی چڑھایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اندر داخل ہو رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بس آپ یہاں کی زیارت کرتے رہیے، خوبصورتی دیکھیے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی یہاں کی زیارت کر سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ، اور جو سنہرا گنبد آپ باہر سے دیکھتے ہیں، جو سونے کا گنبد آپ دیکھتے ہیں، اندر سے یہ کچھ اس طریقے کا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور روضہ مبارکہ کے بالکل اوپر ایک جھومر بھی لگا ہوا ہے، اور یہ جالیوں کے اوپر بھی تمام پلیٹنگ جو ہے گولڈ ہی کی گئی ہے۔ تو اس جگہ مرد حضرات زیارت کرتے ہیں، اور اس پردے کے اس دیوار کے پیچھے جو ہے عورتیں زیارت کرتی ہیں، اور ایک خاص جگہ یہاں پر بنائی گئی ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے چھوٹے بچوں کو لا کر اور جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان کی زیارت کے لیے یہ الگ جو ہے راستہ بنایا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہینڈی کیپ لوگ ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کو لا کر کے یہاں پر اس جگہ سے زیارت کروائی جاتی ہے۔ اور یہ مزار شریف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بیچ میں دربار سجا ہوا ہے، اور چاروں طرف جو ہے مسجد ہے، یہاں پر نمازیں ادا ہوتی ہیں۔ تو ناظرین چلیے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے سے ہم چلتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی طرف۔ جیسے ہم یہاں سے باہر نکلیں گے آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس روضہ نظر بھی آئے گا۔ تو یہ دیکھیں، سبحان اللہ۔ یہاں پر آگے جانے کے لیے یہ بالکل سیدھے راستے بنائے گئے ہیں، ایک راستہ وہاں پر ہے، ایک راستہ وہاں پر ہے، آپ درمیان سے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ جب دھوپ زیادہ ہوتی ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے یا برسات ہوتی ہے تو یہ راستے جو کہ کورڈ ہیں اس میں سے جانے میں آسانی ہوتی ہے، اور یہ بالکل مستقیم راستہ ہے، یعنی سیدھا راستہ ہے حضرت امام حسین کے روضے کے لیے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے قریب آتے ہیں تو یہاں سے جو ہے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بڑا ہی خوبصورت نظر آتا ہے، کیونکہ گنبد اور مینار جو ہے یہاں سے بہت اچھے طریقے سے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس گیٹ سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، اس گیٹ کا نام ہے باب الشہداء، لیکن میں آپ کو یہاں سے نہیں، مین انٹرنس سے انشاءاللہ آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ تو قریب سے کچھ اس طریقے کا نظر آتا ہے، اور یہاں پر مین گیٹ پر ایک کلاک ٹاور بھی لگائی گئی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی 12 بج رہے ہیں۔ تو یہاں پر مین انٹرنس میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا نظارہ ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ ابھی ہم انٹر ہو رہے ہیں امام علی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین شہید رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے یہاں پر جو ہے جنازہ پڑھایا جا رہا ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لائیو ویڈیو کوریج کیا جا رہا ہے، یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، اور یہ لائیو ویڈیو کوریج یہاں پر ہمیشہ جو ہے، اگر آپ ہوٹلز وغیرہ میں رہتے ہیں، دکان یہاں پر آس پاس کی جتنی بھی دکانیں ہیں جہاں پر ٹی وی ہیں، تو یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہمیشہ دربار کا یہاں پر ہوتا ہی رہتا ہے۔
جیسا کہ آپ حرمین شریفین میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا لائیو ٹیلی کاسٹ ٹی وی پہ ہوتا ہے وہاں پر، اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی بیچ میں دربار ہے اور چاروں طرف مسجد بنائی گئی ہے جہاں پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اور اس دربار کو بھی اسی طریقے سے سجایا گیا ہے، لیکن یہ بارگاہ امام علی مقام میں داخل ہوتے ہیں۔ السلام علیکہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار حاضری قبول فرمائیں۔ اندر انٹر ہونے کے بعد آپ کو رائٹ سائڈ میں گنج شہیدہ نظر آئیں گے، اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں، اور لیفٹ سائڈ میں آپ کو ایک مزار شریف نظر آ رہی ہوگی، اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ تو چلیے سب سے پہلے گنج شہیدہ کے پاس چلتے ہیں۔ تو یہ جالیہ ہے گنج شہیدہ کی، یہاں پر کرب و بلا میں جتنے بھی شہید ہوئے تھے تمام کے مزارات ایک ہی جگہ پر جو ہیں بنائے گئے ہیں، اسی لیے، اور کیونکہ تمام شہدائے کربلا ایک ہی جگہ پر یہاں پر مدفن ہیں، اسی لیے اس کو گنج شہیدہ کہتے ہیں۔ تو چلیے اندر کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو ایک ہی مزار شریف میں ایک ہی جگہ پر تمام شہداء کو، شہدائے کرب و بلا کو مدفن کیا گیا ہے۔ اب گنج شہیدہ سے ہم اس مقام پر جا رہے ہیں جہاں پر ایک اور مقبرہ، جہاں پر ایک اور مزار شریف موجود ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مزار شریف جو ہے حضرت حبیب بن مظاہر الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو کہ حضرت امام علی مقام کے ایک خاص دوست تھے، اور یہ آپ کی مزار شریف ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو یہاں پر جو ہیں 3 مزارات موجود ہیں امام علی مقام کے ساتھ۔ ایک ہے سب سے پہلے حضرت امام علی اکبر، رائٹ سائڈ میں، ان کے بغل میں حضرت امام علی اصغر جو کہ 6 مہینے کے معصوم بچے تھے، اور ان کے بغل میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف موجود ہے، اور یہ گنبد کے اندر کا حصہ ہے جو آپ کو باہر سنہرا گنبد نظر آتا ہے۔ ابھی میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے موجود ہوں، یہ سرہانے کا حصہ ہے، اور اندر کی یہ خوبصورتی دیکھیے، سبحان اللہ۔ چلیے حضرت امام علی مقام کے روضے کی زیارت کریں، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام علی مقام کے روضے کے سرہانے کی طرف ہم باہر نکلیں گے تو یہاں پر لیفٹ سائڈ میں ایک اور روضہ شریف موجود ہے۔ یہ روضہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم وہی ہیں جن کی مزار شریف بغداد شریف میں کاظمین شریف میں موجود ہے، تو یہ ان کے شہزادے ہیں۔ ان کا اسم شریف ہے حضرت امام محمد عابد ابن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے مزار شریف کی آپ زیارت کریں۔ امام علی مقام کے روضے کے سرہانے ہی ہم باہر جب آئیں گے تو یہاں پر ایک مقام موجود ہے، تو یہاں پر ہم آئے ہیں۔ تو ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ظالموں نے، یزیدیوں نے میرے امام، ہم سب کے امام علی مقام کو بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا تھا، اور امام علی مقام بھی دین اسلام کی خاطر خوشی خوشی قربان ہو گئے تھے۔ تو اس یاد کو تازہ رکھتے ہوئے اندر بھی لائٹنگ جو ہے لال رنگ کی یعنی سرخ رنگ کی دی گئی ہے۔ تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر امام علی مقام علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں یزید ظالم نے جو ہے، یزیدیوں نے جو ہے شہید کر دیا تھا۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے،
छुरी के नीचे गला है लेकिन मगर किसी से गिला नहीं है। अल्लाह अकबर। और ये कुर्बानी और ये अजीम कुर्बानी, ये अजीम काम आले रात में ज़ायरीन जाते हैं, जहां जाने के बाद आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम ज़ियारत करने जा रहे हैं करबला शहर की। करबला शहर कब आबाद हुआ और इस शहर के मुकद्दस मकामात कौन से हैं? करबला शहर में 9 और 10 मुहर्रम को लोग क्या करते हैं और कैसा माहौल होता है? इस शहर में लोगों की ज़िंदगी कैसी है? इसके अलावा इस शहर के बारे में बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं करबला शहर के एक तारीखी सफ़र पर। करबला इराक़ का ऐसा शहर है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है और इसकी अहमियत की वजह 10 मुहर्रम 61 हिजरी को होने वाली करबला की जंग है। करबला का शहर इस्लामी तारीख से बड़ा हुआ है। करबला की तारीख याद करके हर मुसलमान की आंखें आंसुओं से नम हो जाती हैं। करबला की जंग हक और बातिल की जंग थी। करबला शहर की कुल आबादी 10 लाख के करीब है। इस शहर का कुल रकबा 42 मुरबा किलोमीटर है। करबला शहर बगदाद से 103 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि नजफ से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आज इस शहर में करोड़ों मुसलमान ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आते हैं। खास तौर पर शिया ज़ायरीन बड़ी तादाद में आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इस शहर की ज़ियारत की, जिसमें हर साल 9 से 10 मुहर्रम के दरमियान 1 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा लोग इस शहर में मौजूद होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके करबला के साथियों से मोहब्बत और अकीदत का नतीजा है। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ। वाक़या करबला से पहले ये शहर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक रेगिस्तान और मैदान जंग था। इस जंग को बैटल ऑफ करबला कहा जाता है, जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था, जिसके बाद करबला में ही इनका रोज़ा मुबारक बनाया गया और लोगों ने यहाँ आबादकारी शुरू कर दी। आबादी का आगाज़ भी आपके रोज़े के चारों इतराफ से हुआ, जिसके बाद ये मुकम्मल तौर पर शहर बन गया। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो ये मुकद्दस शहर इराक़ के वस्त में वाक़या है। करबला शहर के लोगों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया यहाँ आने वाले करोड़ों ज़ायरीन हैं, क्योंकि मुहर्रम का महीना शुरू होते ही ये शहर लोगों से भर जाता है और हर तरफ हज़रत इमाम हुसैन की सदाएं बुलंद होती हैं। करबला शहर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कदीम करबला, जहाँ ज़्यादातर मुकद्दस मकामात मौजूद हैं, जबकि करबला शहर के दूसरे हिस्से में लोग रहाइश पजीर हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के चारों इतराफ में बाजार मौजूद हैं और ये बाजार कदीम ज़माने के हैं। आप किसी भी बाजार से गुजरेंगे तो इसका रास्ता आपके रोज़े की तरफ ही जाएगा। इन बाजारों में छोटी छोटी दुकानें बनाई गई हैं। स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे। इराक़ के रवायती खानों का मज़ा आप यहाँ आकर ले सकते हैं। जैसे आमतौर पर नाश्ते में अंडा, बीन्स और देसी घी डालकर दिया जाता है। इस नाश्ते के बाद इराकी चाय भी बहुत मज़ेदार होती है। इन्हीं बाजार से गुजरते हुए एक ऐसा मकाम भी आता है जहाँ करबला की तारीख दोबारा आपकी आंखों के सामने आ जाती है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के एक लश्कर के सिपा सलार से मीटिंग हुई थी, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जंग की 1 दिन की मोहलत दी जाए ताकि हम इबादत कर सकें, इसके बाद आप जंग कर सकते हैं। बाजार से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत बड़ी शराइन नजर आएगी। दोस्तों, करबला का वाक़या क्यों पेश आया? उमैया खिलाफत का उस वक्त का लीडर यजीद था और वो चाहता था मेरे बाद मेरा बेटा खलीफा बने, जबकि यजीद की तर्ज हुकूमत से कोई भी खुश नहीं था। इस दौर में यजीद दमिश्क में रहता था। कूफा ऐसा इलाका था जहां हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत संभाली थी और कूफा ही उस वक्त इस्लाम का कैपिटल था। कूफा के लोग चाहते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया जाए। कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखे और अपने पास बुलाया, आप यहाँ आएँ, हम आपके साथ हैं, यहाँ तक कि हमें लड़ना भी पड़ा तो हम आपके साथ जंग में हिस्सा लेंगे। लेकिन कूफा के लोगों ने धोखा दिया, जिसके बाद 10 मुहर्रम को वाक़या करबला पेश आया। ये वाक़या सिर्फ मजलूम और जालिम के दरमियान नहीं, बल्कि जुर्रत, हक और बहादुरी के साथ जुल्म के खिलाफ खड़े होने का और अल्लाह पर यकीन रखने का है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में 72 लोग थे, जबकि यजीद के लश्कर में 4000 से भी ज़्यादा लोग थे। इस ज़माने में आपने करबला के मुकाम पर अपने हैमे लगाए, जहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान और पानी की भी किल्लत मौजूद थी। यहाँ तक कि यजीद की फ़ौज ने पानी भी बंद कर दिया, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ छोटे बच्चे भी मौजूद थे, क्योंकि आप अपने सारे खानदान के साथ तशरीफ़ लाए थे। इसके बावजूद आपकी हिम्मत में ज़रा बराबर भी कमी ना आई।
और इसकी वजह थी अल्लाह पर यकीन। 3 दिन तक पानी के बगैर वक्त गुजारा, जहां रेगिस्तानी गर्मी भी अरूज पर थी। आखिरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके खानदान वालों को जंग में शहीद कर दिया गया और आज इसी जगह आपका रोजा भी मौजूद है। रोजे के करीब बाजार में भी बहुत मुकद्दस मकामात मौजूद हैं, जिनको जालियों की मदद से बंद किया गया है। चलें अब आपको रोजे की तरफ लेकर चलते हैं। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के बिल्कुल साथ आपके भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा भी मौजूद है, जो करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहम साथी थे। ये है हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक, जहाँ से आप एक बड़े दरवाजे से दाखिल होने के बाद नीचे की तरफ जाते हैं और सामने आपको बहुत खूबसूरत गोल्डन दरवाजा नजर आएगा, जिस पर सोने का काम किया गया है। इस दरवाजे के बाहर एक सहन मौजूद है, जहां लोग नमाज अदा करते हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज के सिपा सलार थे। जब आपके खानदान के लोग शहीद हो चुके थे और सिर्फ बच्चे ही बचे थे, तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बच्चों के लिए पानी लेने गए थे। आपको इसी वजह से इनके रोजे के ऊपर एक मश्क भी लगी हुई नजर आएगी और ये मश्क ही इस वाक़े की अलामत है। जब आप पानी के लिए गए तो आपको रास्ते में शहीद कर दिया गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा भी अंदर से बहुत खूबसूरत और नक्शो नगार से बड़ा हुआ है। मुहर्रम के अयाम में यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के बाहर एक एरिया है, जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजे के दरमियान बनाया गया है। इसे बैनुल हरमैन भी कहा जाता है। ये जगह 2 रोजों को आपस में मिलाती है। ये तकरीबन 250 मीटर लंबा एरिया है। ये वही जगह है जो अरबैन वॉक से चलते हुए लोग यहाँ आते हैं, जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि करबला की जंग में सबसे ज्यादा शहीद इसी जगह हुए थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे में दाखिल होते ही आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। ये वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में खेला करते थे, जिन्होंने अपना बचपन भी जन्नत के टुकड़े पर गुजारा है, जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। शराइन के अंदर ही एक म्यूजियम भी बनाया गया है। ये पिलर इसी बात को जाहिर करता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नीचे का पिलर जाहिर कर रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस्लाम ऐसे मजबूत था। इसके बाद इस्लाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और दरमियान का हिस्सा करबला को जाहिर करता है और ऊपर का पिलर जाहिर करता है कि करबला के बाद दोबारा इस्लाम मजबूत हुआ। यहाँ इन लोगों के नाम भी लिखे गए हैं जिन्होंने आपके रोजे पर हमला करने की कोशिश की थी। ये तमाम चीजें उस दौर की चीजों से तशबीह के तौर पर रखी गई हैं। इस म्यूजियम में एक बहुत खूबसूरत कारपेट भी रखा गया है। इस कारपेट को बनाने में 8 साल लगे थे। ये कारपेट करबला की जंग को जाहिर करता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम भी बहुत वसी बनाया गया है और अंदर से भी इंतहाई खूबसूरत है। ये वो जगह है जहां आपको शहीद किया गया था। इसके अंदर रंग लाल रखा गया है। हरम के चारों इतराफ में नक्शो नगार किए गए हैं। आपके रोजे मुबारक की इन जालियों को जरी कहा जाता है। दोस्तों, करबला के नाम के बारे में मुख्तलिफ राय हैं। करबला का एक मतलब नरम जमीन है और एक मतलब ये भी समझा जाता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि एक ऐसी जमीन है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर मुसीबत और अजियत दी जाएगी। तो अजियत देने वाली जमीन का मतलब भी करबला कहा जाता है। हरम के करीब नहर फरात है, जहां 7 मुहर्रम को पानी बंद किया गया था। ये जो आप जगह देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी भरने के लिए आए थे। दोस्तों, आपने मक्का और मदीना शरीफ में देखा होगा कि लोगों को व्हील चेयर पर बैठा कर ले जाया जाता है और इसका कुछ मुआवजा भी लेते हैं। ऐसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के करीब रेडी वाले मौजूद होते हैं। जो लोग पैदल ज्यादा नहीं चल सकते, वो इस पर बैठकर जा सकते हैं। आप ये जो देख रहे हैं, इसे अरबी में हुब कहा जाता है। इराकी लोग ये बीज बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। इराकी खानों में अक्सर हुमस और अचार पेश किया जाता है, जो लोग रोटी और चिकन के साथ खाते हैं। दाल का सूप इराक में बहुत शौक से पिया जाता है, जिसे लेंटल सूप कहा जाता है। हरम के इस रास्ते पर लोगों का रश आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा। दोनों इतराफ में दुकानें मौजूद हैं और गर्मी से बचने के लिए कपड़े की छत भी लगाई गई है। पूरे इराक की निस्बत इस शहर में सबसे ज्यादा अमन है। इस पूरे शहर में बुलंदो बाला इमारतें ना होने के बराबर हैं, लेकिन करबला बगदाद और दूसरे शहरों से ज्यादा डेवलप है। खूबसूरत रेस्टोरेंट और दुकानें शहर के मुख्तलिफ हिस्से में मौजूद हैं। इराकी आइसक्रीम भी बहुत मजेदार होती है। आप जब भी जाएं तो आइसक्रीम जरूर खाइएगा, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों, आप ये जरूर देखना चाहेंगे कि 10 मुहर्रम का दिन करबला में कैसा होता है। 10 मुहर्रम को पूरे शहर में लोग सड़कों पर आ जाते हैं।
जुलूस की शक्ल में हाथ में झंडे लिए होते हैं। इराकी लोग 10 मुहर्रम के दिन जोहर की नमाज के बाद पूरे शहर से लोग भागना शुरू कर देते हैं। ये तमाम लोग भागते हुए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की तरफ जाते हैं। गर्मी की वजह से हर जगह इन पर पानी फेंका जाता है और पानी की सबीलें भी हर जगह लगाई जाती हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब आपको किसी के गम की खबर मिलती है तो आपकी कैफियत भी यही होती है कि आप उस तरफ भागते हैं जहाँ से गम की खबर आई होती है। ऐसे ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी जोहर के बाद शहीद किया गया था। इस कैफियत को दिखाने के लिए ये किया जाता है। सिक्योरिटी के लिए हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाती है। चलें अब आपको वो जगह की जियारत करवाते हैं जहाँ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे लगाए गए थे। इसे खैमा अल हुसैन भी कहा जाता है। अगर आप हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे से किबला गेट से बाहर निकलेंगे तो शारे बकिया से होते हुए आप शारे जमहूरिया से खैमा अल हुसैन पर पहुंच जाएंगे, जो सिर्फ 10 मिनट के मुसाफत पर वाक़या है, जहां जाकर आप तारीख के उस वक्त को दोबारा याद कर सकते हैं। दोस्तों, करबला के लोग भी बहुत मेहमान नवाज होते हैं। पूरी दुनिया से आने वाले ज़ायरीन की बहुत इज्जत करते हैं और अच्छे तरीके से पेश आते हैं। इस शहर में मिलने वाले खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं। मीठे खानों की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। 10 मुहर्रम के बाद करबला के शहर की रौनकें एक बार फिर आबाद होती हैं। इसे अरबैन वॉक कहा जाता है, जो नजर से करबला की तरफ लोग पैदल सफर करते हैं। ये रास्ता तकरीबन 80 किलोमीटर का है। कुछ लोग सफर गाड़ी पर करते हैं और कुछ मुकम्मल तौर पर पैदल भी करते हैं। रास्ते में खाने पीने का तमाम इंतजाम बिल्कुल मुफ्त होता है। पैदल चलने वाले लोगों की बहुत ज्यादा हिदमत की जाती है। पूरे रास्ते में 1452 पोल लगाए गए हैं। पहला पोल नजफ में और आखिरी पोल करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक के करीब वाक़या है। रास्ते में बहुत से मौक़िफ़ मौजूद होते हैं जहां ज़ायरीन की बहुत खिदमत की जाती है और ज़ायरीन रात भी गुजार सकते हैं। इस सफ़र को लाखों की तादाद में लोग करते हैं और करबला में एक बार फिर लोगों का रश होता है। अरबैन वॉक आम तौर पर 16 से 17 सफ़र में शुरू होती है। करबला में 5 स्टार होटल का किराया $150 से $400 एक रात का है, जिसमें करबला बेबलोन होटल और कसर अल मेहराब शामिल हैं। लेकिन मुहर्रम में किराया बहुत ज्यादा हो जाता है। इस शहर की GDP $12 बिलियन है, जिसमें 70% टूरिज्म सेक्टर से आमदनी होती है। इस शहर में 98% अरब शिया मुस्लिम रहते हैं, बाकी 2% सुन्नी मुस्लिम, मसीही और कुछ यजीदी भी आबाद हैं। यहाँ रहने वाले लोग पूरे इराक की निस्बत सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। करबला का लिटरेसी रेट 85% के करीब है। दोस्तों, ये शहर मक्का, मदीना और बैतुल मुकद्दस के बाद मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है। गरूर टूट गया, कोई मर्तबा ना मिला, सितम के बाद हासिल जफा ना मिला, सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ ना मिला। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के ईमान हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ईमान की तरह मजबूत बनाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ऐसी सरजमीन जहां बहुत से सहाबा कराम और अंबिया कराम ने अपने कदम मुबारक रखे हैं। मुसलमानों के लिए ये शहर बहुत मुकद्दस मकाम है, लेकिन दुनिया इसे तरक्की याफ्ता होता नहीं देख सकती। जी हाँ, आज हम जियारत करने जा रहे हैं इराक के शहर नजफ की। इस शहर में जाकर क्यों मुसलमानों की आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम को किस जगह शहीद किया गया, आपका घर कैसा था और क्यों आपको वीरान जगह में दफन किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस जगह है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी जियारत आपको करवाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। चलें अब चलते हैं नजफ के एक खूबसूरत सफ़र पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल नजफ अल अशरफ है। नजफ की कुल आबादी 14 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये इराक का 5वां बड़ा शहर है। नजफ शहर इराक का एक तारीखी और मजहबी अहमियत रखने वाला शहर है, जो जुनूब वस्ती इराक में वाक़या है। ये शहर मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस समझा जाता है। खास तौर पर शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़ी तादाद में इस शहर में आते हैं, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक इस शहर में वाक़या है। रोज़ा मुबारक की वजह से शिया मुसलमानों ने इसे बहुत बड़ा ज़ियारती मरकज़ बना दिया है। नजफ की एक अहम खसूसियत इसका इल्मी और दीनी मकाम है, जहां दुनिया भर से उलमा और दीनी तलबा इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। इस शहर की हुर्जा इल्मिया एक कदीमी तालीमी इदारा है, जो दीनी तालीमात के लिए फेमस है। नजफ सिटी में रहने वाले 95% लोग शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा सुन्नी मुस्लिम और ईसाई भी आबाद हैं।
इराक में पाकिस्तानियों की तादाद 10,000 के करीब है, जिनमें बहुत से तालीम के गर्ज से नजफ आते हैं और कारोबार के गर्ज से ज्यादातर लोग बगदाद में रहते हैं। इसके अलावा करबला और इरबिल सिटी में भी रहते हैं। इराक में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इराकी दिनार है, जो बहुत कमजोर करेंसी है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले आपको 5 इराकी दिनार मिलते हैं। ये शहर इस्लाम के अवराक में एक ऐसा वर्क है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत से लोग इस शहर को सिर्फ शिया मसलक के लोगों का शहर समझते हैं, जबकि ये शहर हर मुसलमान के लिए अहमियत रखता है। इस शहर की मसाजिद का इस्लाम से बहुत गहरा ताल्लुक है। इस शहर में हर साल लाखों ज़ायरीन आते हैं। पाकिस्तान से नजफ की फ्लाइट 1,90,000 तक आसानी से मिल जाती है। यह है नजफ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो शहर के करीब बनाया गया है। इस शहर की मईशत का सबसे ज्यादा दारोमदार भी ज़ायरीन की आमद पर है। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में ज़ायरीन जाते हैं। ये शहर बगदाद से 160 किलोमीटर के फासले पर है। कूफा शहर इसके बिल्कुल साथ वाक़या है। इन दोनों शहरों का आपस में फासला सिर्फ 5 किलोमीटर है। आज ये दोनों शहर एक हो चुके हैं। अगर तारीखी लिहाज से देखा जाए तो कूफा शहर ज्यादा कदीम है, जबकि नजफ में आबादकारी का आगाज इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक बनने के बाद हुआ है। एक ज़माने में इस जगह दरिया फरात भी गुजरता था। सल्तनत उस्मानिया ने भी यहाँ हुकूमत की है, लेकिन जब पानी का रुख तब्दील होना शुरू हुआ तो आबादी में तेजी से कमी आना शुरू हो गई। कहा जाता है उस वक्त 3,000 लोग आबाद थे, लेकिन कमी के बाद सिर्फ 30 लोग रह गए। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया और दोबारा ये शहर आबाद होना शुरू हुआ। चलें सबसे पहले नजफ से चलते हैं कूफा, जिसे बागियों का शहर भी कहा जाता है। ये नजफ से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर है। इस्लामी तारीख में इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। कूफा में सबसे पहले ज़ायरीन मस्जिद कूफा में जाते हैं। इसके इर्द गिर्द छोटे बाजार मौजूद हैं। टैक्सी या बस आपको इस मस्जिद से कुछ फासले पर ही उतार देगी। बाजार से गुजरते हुए आप हजरत मुस्लिम बिन अकील गेट पर पहुंच जाएंगे। इस मस्जिद में जाने के बाद दिल खून के आंसू रोता है। दमादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम को इस जगह ही फजर के वक्त शहीद किया गया था। आप उस वक्त सजदे की हालत में थे। दोस्तों, ये वो मकाम है जहां आप पर जहर आलूद तलवार से जरब लगाई गई थी। उस वक्त 19 रमजान मुबारक और 40 हिजरी थी। इस जगह की जियारत के बाद हर मुसलमान की आंखें आंसुओं से नम हो जाती हैं। आप शदीद जख्मी हालत में थे। 2 दिन बाद 21 रमजान 40 हिजरी को अपने घर में हालत हकीकी से जा मिले। मौला अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी सब्र, इस्तकामत और अदल की अजीम मिसाल है। कुछ रवायात से पता चलता है कि आपको शहीद करने वाला शख्स अब्दुल रहमान बिन मुलजिम नामी हारजी था। इस मस्जिद में बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं। ये मस्जिद बहुत खूबसूरत बनाई गई है, जिसके वसत में एक वसी सहन मौजूद है। इस मस्जिद को उस जगह तामीर किया गया था जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी। इसको मस्जिद की शक्ल हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में दी गई थी। 639 ईस्वी में हजरत साद बिन अबी वकास की निगरानी में इसे तामीर किया गया। इब्तदाई दौर में ये फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल होती थी, क्योंकि कूफा इस्लामी फतुहात के लिए अहम मरकज था। बाद में ये मस्जिद इस्लामी तालीमात का मरकज बन गई। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी खिलाफत के दौर में कूफा को अपना दारुल हुकूमत बनाया। दोस्तों, आप ये जो कुआं देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां तूफान नूह का आगाज हुआ था, और इसके बाद तूफान नूह जब खत्म हुआ तो दोबारा सारा पानी इस कुएं में चला गया था। इस जगह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती भी बनाई थी। दोस्तों, इसी मस्जिद में हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चचाजाद भाई और नुमाइंदा थे, जिन्हें वाक़या करबला से पहले कूफा भेजा गया था। कूफा में आपने हानी बिन उर्वा के घर में क़याम किया, लेकिन कूफा के गवर्नर ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेदर्दी से शहीद कर दिया। आपका रोज़ा मुबारक भी मस्जिद कूफा में बनाया गया है। इनके साथ ही बिल्कुल हानी बिन उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक भी मौजूद है। इसके अलावा मस्जिद के सहन में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम शब मराज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नवाफिल अदा किए थे। बहुत से लोग यहाँ आकर नवाफिल भी अदा करते हैं। इसके करीब ही एक जगह मौजूद है जहाँ मौला अलैहिस्सलाम बैठकर फैसले किया करते थे। इस जगह पत्थर का एक पीस लगाया गया है। दोस्तों, इस मस्जिद में बहुत से अंबिया कराम इबादत के लिए आ चुके हैं,
ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाई गई है। इस मस्जिद की रेनोवेशन 2010 में की गई थी। इसका ज्यादातर काम इंडिया की दाऊदी मुस्लिम कम्युनिटी ने करवाया था। इसके अंदर लगा सफेद पत्थर भी इंडिया से लाकर लगाया गया है। इस मस्जिद में अल मुख्तार सकफी की कब्र भी मौजूद है। दोस्तों, आप जब मस्जिद के बाबुल मुराद गेट से बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सामने मौला अली अलैहिस्सलाम की रहायश गाह मौजूद है। इस रहायश गाह में एक तरफ कमरा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। इस घर के अंदर ये वो जगह है जहां मौला अली अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया था। इस जगह आने के बाद जज्बात को लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। लोग इस घर में आकर नवाफिल भी अदा करते हैं। इस रहायश गाह को देखने के बाद ये पता चलता है कि आप अपने दौर के बहुत बड़े खलीफा होने के बावजूद छोटे से घर में जिंदगी गुजार रहे थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने आज के हुक्मरानों की तरह ना महल बनवाए और ना ही दुनिया का माल इकट्ठा किया। खिलाफत राशिदा खत्म होने के बाद हर बादशाह ने अपने लिए महल बनवाए और लग्जरी लाइफ गुजारी। और शायद मुसलमानों की पसमानदगी की एक वजह यह भी है कि इस्लामी तालीमात से हटकर अवाम और हुक्मरानों ने लग्जरी लाइफ को तरजीह देना शुरू कर दिया है। चलें अब कूफा में मौजूद अल सहाला मस्जिद की तरफ चलते हैं। मस्जिद कूफा से 10 मिनट की ड्राइव पर यह मस्जिद मौजूद है। दोस्तों, इस मस्जिद के बारे में शिया मसलक के लोगों की तरफ से कहा जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद ये मस्जिद इनकी क़यामगाह बनेगी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। चलें अब कूफा से चलते हैं नजफ की तरफ, जहां मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। दोस्तों, आपकी शहादत कूफा में हुई लेकिन आपका रोज़ा नजफ में है। इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सी वजूहात थीं, जिनमें से एक ये थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि नजफ में दफन किया जाए। उस वक्त नजफ वीरान और पुरसुकून इलाका था। दूसरी वजह यह थी कि आपकी कब्र दुश्मनों से महफूज रहे। इसके अलावा नजफ को वादी इस्लाम भी कहा जाता है, जहां बहुत से अंबिया इकराम की कब्र भी मौजूद हैं। आपके रोजे के इर्द गिर्द बहुत से बाजार हैं, जहां अक्सर लोगों का रश रहता है। हर तरफ आपको दुकानें नजर आएंगी, जिनमें रेस्टोरेंट, ड्राई फ्रूट और खजूरों की दुकानें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आपके रोजे पर पहुंचने तक मुख्तलिफ चेक पोस्ट बनाई गई हैं, जिसके बाद आपको कुशादा सहन देखने को मिलेगा। इसके बहुत से दरवाजे बनाए गए हैं। तकरीबन हर दरवाजे की तरफ बाजार मौजूद हैं। लोगों को ले जाने के लिए गाड़ियां भी चलाई गई हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं। आपके रोजे की मस्जिद बहुत बड़ी बनाई गई है, जहां लाखों ज़ायरीन आकर नमाज भी अदा कर सकते हैं। गुंबद के ऊपर सोने का काम किया गया है। इस सहन के अंदर एक और दरवाजा लगाया गया है, जहां से आप रोजे की जालियों तक पहुंच जाते हैं। इन जालियों को जरी भी कहा जाता है, जहां आप खड़े होकर बड़े अदब से सलाम पेश कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हारून रशीद के दौर में हजरत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े का पता चला। हारून रशीद जब शिकार के लिए इस इलाके से गुजरते थे तो इनके शिकारी कुत्ते इस जगह नहीं आते थे। बाद में पता चला कि ये वो जगह है जहां हजरत अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है। इसके बाद यहाँ एक रोज़ा बनाया गया। इसे बहुत खूबसूरत सोने के पानी से तैयार किया गया है। इस जगह पूरे शहर से जनाजे भी लाए जाते हैं। चलें यहाँ से आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान, जिसका नाम वादी सलाम है। वादी सलाम का मतलब अमन की वादी। हजरत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी इसी वादी सलाम में आता है। इसका कुल रकबा 6 मुरब्बा किलोमीटर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 लाख से भी ज्यादा कब्रें मौजूद हैं। कहा जाता है पिछले 1400 सालों से यहाँ लोगों को दफनाया जा रहा है। 2004 की इराक जंग में रोजाना 200 से ज्यादा लोगों को दफनाया जाता था। ये कब्रिस्तान शिया मसलक के लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। आप इसकी अहमियत का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि ईरान से भी बहुत से लोग यहाँ दफन होने के लिए आते हैं। शिया मसलक के नज़दीक इसकी अहमियत ऐसी ही है जैसे दूसरे मुसलमानों के नज़दीक जन्नतुल बकी की है। दोस्तों, आपने अरबैन वॉक का तो सुना होगा। ये ऐसा सफ़र है जो यकम सफ़र को शुरू किया जाता है, जो नजफ से करबला की तरफ होता है। शिया मसलक के अकीदे के मुताबिक जो सफ़र हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा से करबला की तरफ किया था, इसकी तशबीह उसी से दी जाती है। इसका फासला तकरीबन 80 किलोमीटर है। कुछ लोग पूरा सफ़र ही पैदल करते हैं और कुछ लोग पैदल के साथ साथ गाड़ी पर भी सफ़र करते हैं। पूरे रास्ते में 1452 पोल हैं, मतलब पहला पोल नजफ में है और आखिरी पोल करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक के सामने है। रास्ते में बहुत से मौक़िफ़ बनाए गए हैं, मतलब जहां ज़ायरीन की बिल्कुल फ्री खिदमत की जाती है और ज़ायरीन आराम भी कर सकते हैं। इस सफ़र को लाखों की तादाद में लोग सर अंजाम देते हैं। इस पूरे सफ़र में जगह जगह खानों के फ्री स्टॉल लगाए गए हैं। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन की खिदमत करने की कोशिश करता है।
दोस्तों आप अगर नजफ जाएं तो नजफ के ग्रेट नजफ बाजार का जरूर विजिट करें, जहां जाकर आप इनकी सकाफत को करीब से महसूस कर सकते हैं। ये शहर ज्यादा डेवलप नहीं है क्योंकि जंगों ने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है और दुनिया के बहुत से ममालिक इसको डेवलप होता नहीं देख सकते। जबकि आपको सुनकर हैरानगी होगी, दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला ये मुल्क है। दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। दोस्तों आपको यहाँ पर छोटे छोटे मेहराब नज़र आ रहे होंगे, इसके बारे में मैंने यहाँ से मालूम किया। यहाँ पर भी देखिए छोटे छोटे मेहराब हैं। अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ नज़र आ रहे होंगे, इनसे मैंने पूछा ये है क्या, तो उन्होंने बताया कि ऊँटों के ऊपर देखिए ये छोटे, तो ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खीमा लगा हुआ था, यानी आपका कैंप लगा हुआ था। इसके पीछे एक और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्त बीमार थे और यहीं पर आप आराम फरमा रहे थे। आप तो हज़रत इमाम अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 6 महीने के बच्चे थे और बच्चों को जो झोली में डाल करके सुलाया जाता है, उसी अभी मैं उस मुकाम में दाखिल हो रहा हूँ। ये जो सुरंग आपको नज़र आ रही है ये जाफ़र जिनकी है, जो कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन के पास आया था और जगह पर हज़रत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घोड़े से गिर गए थे। और गलियां भी दिखाऊंगा और यहाँ के दुकान वगैरह कैसे होते हैं वो भी दिखाऊंगा, ताकि जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं अभी तक वो ज़ियारत कर लें कि यहाँ की गलियाँ कैसी हैं, करबला शरीफ की यहाँ के रास्ते कैसे हैं, यहाँ का माहौल कैसा होता है। तमाम ज़ियारतें आप इंशाअल्लाह इस वीडियो में करेंगे। ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है ये हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े मुबारक का मेन एंट्रेंस है। आप ऊपर पढ़ सकते हैं अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़ल अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ऊपर पीछे जो है 2 आपके मीनार नज़र आ रहे होंगे। इसी रास्ते से हमें इस तरफ जाना है। तो यहाँ के आप दुकान वगैरह देख सकते हैं, ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर तबर्रुक अगर आप लेना चाहें तो ये ख़रीद करके ले जा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और ये दुकानें बिल्कुल हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े मुबारक के आगे ही मौजूद हैं। अब जैसे ही थोड़ा आगे आएंगे तो ये एक मुकाम आपको नज़र आएगा। नाज़रीन ये मुकाम क्या है? ये वो मुकाम है जबकि हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सकीना के लिए जब पानी ला रहे थे तो यजीदियों ने आप पर हमला कर दिया और आपका एक बाजू मुबारक यानी आपका एक हाथ शरीफ शहीद कर दिया। तो आपका बायां हाथ शरीफ यानी लेफ़्ट हैंड जो है यहाँ पर शहीद हुआ था और उसकी मज़ार, उस हाथ की मज़ार इसी जगह पर बनाई गई है। आप ये मुकाम भी देख सकते हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि आपका हाथ मुबारक की जो मज़ार है यही है या फिर आपके जिस्म मुबारकी के साथ उसको जो है दफन किया गया है, लेकिन ये वही मुकाम है जहाँ पर ये वाक़या अमल में आया था। अभी इस ज़ियारत के बाद हम और आगे बढ़ेंगे। अभी हम जा रहे हैं आपके दूसरा बाजू जहाँ पर शहीद हुआ था उस मुकाम पर हम जा रहे हैं। तो बाबुल अलक़मी के आगे हम जा रहे हैं, यहाँ पर आपका दूसरा बाजू मुबारक है। तो बिल्कुल इस छोटी सी गली में हमें दाखिल होना है। तो ये देखिए यहाँ पर दुकानें काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ पर एंटीक पीसें ज़्यादा मिलती हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। तो नाज़रीन यही वो मुकाम है जहाँ पर हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सीधा बाजू यानी आपका राइट हैंड को शहीद किया गया था।
اندر کی زیارت کریں. یہاں پر دیکھیں کاسے کے شیپ کا ایک چیز بھی یہاں پر جو ہے میٹل سے بنائی ہوئی ہے, اور یہاں پر جو ہے کاسے بکتے بھی ہیں. مشکیزہ جو ہے نا, تو جیسے مشکیزے میں حضرت عباس علمبردار اس پانی کو لا رہے تھے. مشکیزہ کسے کہتے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا, آپ کو یاد ہی ہوگا. تو یہاں پر دیکھیے یہ بکتے ہیں, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور بڑے مشکیزوں کے ساتھ جو یوزفل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ چھوٹے بھی جو ہے ملتے ہیں یہاں پر. تو آپ نے اس مقام کی زیارت کر لی, تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جب آپ عراق آتے ہیں, بغداد شریف چلے جائیے, کربلا آئیے یا نجف آئیے, تو آپ کو یہاں پر کئی ساری نگینوں کی انگوٹیاں آپ کو مل جائیں گی, اور آپ کو سلیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کون سی خریدیں. تو اس گلی سے ہم باہر آئے ہیں. تو ناظرین اور بھی کافی زیارتیں ہیں, آپ ویڈیو میں بنے رہیے. ابھی ہم حضرت عباس کے روضے کے دوسری جانب آ گئے ہیں, کیونکہ وہ دو زیارتیں اس جانب تھیں. تو دیکھیے شام میں یہاں کا ماحول کچھ اس طریقے کا نظر آتا ہے, جیسے کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں. تو ڈرائی فروٹس اور ڈرائی مٹھائیاں بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں, جو کہ آپ کو انڈیا اور اپنے وطن لے جانے میں آسانی ہوتی ہے. اور یہ مٹھائیاں وغیرہ آپ جو ہے مزار شریف کے پاس لے جا کر کے فاتحہ کر سکتے ہیں, اور یہ تبرک جو ہے اپنوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یہ وہی راستہ ہے جو میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ مستقیم راستہ ہے, جو کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے سے سیدھا حضرت امام حسین کی طرف جاتا ہے. اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی آپ نے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے, آپ دیکھیں, اس کی زیارت کریں آپ انشاءاللہ. تو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کے پاس آ گیا ہوں. ہمیں یہاں سے اور آگے بڑھنا پڑے گا اور زیارتوں کے لیے. تو فائنلی اس گیٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہمیں آنا تھا. یہ گیٹ ہے سدرۃ المنتہا, اس گیٹ کا نام رکھا گیا ہے. اس سدرۃ المنتہا گیٹ کے بالکل آگے میں جو گلی ہے, یہاں پر 3 سے 4 زیارتیں ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں. یہ گلی کے بیچوں بیچ ایسا بنایا گیا ہے یہاں پر. تو بالکل تھوڑا سا اندر آنے کے بعد لیفٹ میں ایک چھوٹی سی گلی ہمیں ملتی ہے. یہاں پر ظفر جن نامی ایک مقام ہے, وہاں پہ چلتے ہیں. حبیبی جعفر جن مقام, جزاک اللہ. تو بالکل بغل ہی میں تھا. تو یہ ہے ناظرین, ابھی میں اس مقام میں داخل ہو رہا ہوں. یہ جو سرنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جعفر جن کی ہے, جو کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے پاس آیا تھا, اور اس نے عرض کی تھی کہ حضور مجھے اجازت دیں, میں اپنی قوم لے کر کے یہاں پر آؤں گا اور ان یزیدیوں کو تباہ و برباد کر دوں گا. مگر امام حسین نے اس کی اجازت نہیں دی تھی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ جعفر جن اسی مقام پر, جو کہ ایک پرانی سی گفا کی طرح ہے, اور یہ راستہ ہے ادھر سے ادھر آنے کا اور جانے کا, تو یہاں پر وہ بیٹھ کر کے کئی سالوں تک رویا تھا, اور اس نے غم کیا تھا کہ امام حسین کی میں مدد نہیں کر پایا. اب اس واقعے کے پیچھے کتنی سچائی ہیں وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ باتیں جو ہے اسی طریقے سے مشہور ہیں. اور کافی سارے ہمارے سنی دوستوں سے بھی میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی مقام ہے. جعفر جن کے مقام کو ہم نے دیکھ لیا. ابھی چلیے اور زیارتیں آگے ہم کرتے ہیں. یہ جو راستہ ہے سیدھا نہر فرات کی طرف جاتا ہے, جو کہ جس کی زیارتیں میں آپ کو آگے کرواؤں گا انشاءاللہ. اسی راستے میں چلتے چلتے آپ کو جو ہے یہاں پر راستوں میں بورڈ نظر آئیں گے, مقام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہاں پر میں آپ کو لے چلتا ہوں. تو یہ گلی کچھ اس طریقے کی نظر آتی ہے, اور پھر یہاں پر کیا ہوا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہاں پر کافی ساری دکانیں لگی ہوئی ہیں. تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مقام حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو دیکھیے یہی ہے.
چلیے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں. میں اندر آ گیا ہوں اور یہ زیارت کریے اندر کا مقام. ابھی یہاں پر ہوا کیا تھا؟ یہ ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام علی اکبر پر برچھیوں سے جو ہے ظالموں نے حملہ کر دیا تھا. جب یزیدیوں نے حملہ کر دیا تو اسی جگہ پر حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے اور زمین پر تشریف لائے تھے اور پھر یہیں پر آپ کو شہید کر دیا گیا تھا. تو اسی کی یاد میں یہاں پر ایک مقام بنایا گیا ہے. اس گلی میں مقام حضرت علی اکبر تھا اور اس گلی میں ہے مقام حضرت علی اصغر. تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ظالموں نے صرف 6 مہینے کے شہزادہ امام حسین حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا. جب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی وجہ سے رونے لگے تو مولا حسین اپنے ہاتھوں میں امام علی اصغر کو لاتے ہیں جن کی عمر صرف 6 مہینے کی تھی. پھر یزیدیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے یزیدیوں، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے سے نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو. لیکن یزیدیوں کی طرف سے جواب میں تیر آتا ہے اور امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے اور امام حسین واپس اپنے خیمے میں حضرت امام علی اصغر کے جسم مبارک کو جو خون سے لپٹا ہوا تھا لے کر کے واپس آتے ہیں. تو حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ جو 6 مہینے کے بچے تھے اور بچوں کو جو جھولی میں ڈال کر کے سلایا جاتا ہے، اسی نسبت سے یہاں پر ان لوگوں نے جو ہے 2 جھولے رکھ دیے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جھولا یہاں پر رکھا ہوا ہے. یہاں پر جو ہے حضرت امام علی اصغر اور حضرت امام علی اکبر کے مقام کی ہم نے زیارت کی. ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں نہر فرات کی طرف. یہاں پر انہوں نے ایک مقام بنایا ہوا ہے صاحب زمان کے نام سے. تو اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے، یعنی شیعہ جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے ان کا ظہور یہیں پر ہوگا. تو اسی کی نسبت سے ان لوگوں نے یہاں پر یہ ایک مقام بنایا ہوا ہے. لیکن اہل سنت میں ایسے کوئی میں نے روایت تو نہیں پڑھی ہے، باقی اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. میرے نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری کہ اس جگہ پر حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے. پھر اس مقام سے ایک پل بنایا گیا ہے یہاں پر جانے کے لیے. یہاں پر ایک مارکیٹ ہے تو اس مارکیٹ سے ہوتے ہوئے ہم جاتے ہیں. اسی مارکیٹ میں ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو ادھر پر ایک مقام بنا ہوا ہے. یہ مقام ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، سلام اہل بیت پر. تو ان کا یہ مقام ہے. یہاں پر حضرت امام جعفر صادق واقعہ کربلا کے بعد جب آپ کا زمانہ آیا تو مدینہ شریف سے یہاں پر تشریف لائے تھے. ابھی اس مقام میں داخل ہو رہا ہوں. یہاں پر نماز پڑھنے کی ایک جگہ ہے. دیکھیے حضرت امام جعفر صادق کے مقام کے اندر کا حصہ ایک خالی جگہ ہے، بس ایک کمرے کی طرح بنا کر کے اس پر جالیاں جو ہے باہر سے بنا دی گئی ہیں. اور یہاں پیچھے جو ہے حضرت امام جعفر صادق کے مقام کے آزو بازو میں حضرت امام جعفر صادق کا باغ بھی ہے جہاں پر آپ آرام کیا کرتے تھے. وہاں پہ دیکھیے باغ کا جو ہے کھجور کا درخت بھی نظر آ رہا ہے. الحمدللہ دوستوں، نہر فرات کے پاس ہم لوگ آ گئے. یہ دیکھ سکتے ہیں نہر فرات یہی ہے. بالکل امام مہدی علیہ السلام کا جو ان لوگوں نے مقام بنایا ہوا ہے اس کے نیچے سے ہوتا ہوا یہ جو ہے نہر فرات گزرتی ہیں. ابھی اس کو ایک ہاؤس کی طرح بنایا ہے اور یہ نہر لمبی جاتی ہے اور نہر میں یہ لوگ لا کر کے بطخیں بھی چھوڑتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کئی بطخیں بھی ہیں اور وہاں پر بھی بیٹھی ہوئی ہیں. لوگ خود اپنی طرف سے چند خرید کر کے کوئی 2 کوئی 3 لا کر خرید کر کے یہاں پر یہ لوگ چھوڑتے ہیں. کربلا کی جنگ ہو رہی تھی اور اہل بیت پیاس کی وجہ سے پریشان تھے تو اس وقت نہر فرات بھی کہہ رہی ہوگی کہ کاش مجھے آپ حکم دیں، میں خود آپ کے قدموں میں چلی آؤں گی. لیکن ان ظالم یزیدیوں نے حضرت امام حسین اور آپ کے خاندان والوں کو، اہل بیت کو، نہر فرات کا پانی تک پینے نہیں دیا تھا. اب ان زیارتوں کے بعد
ایک اور دو زیارتیں ہیں وہاں پہ میں آپ کو لے جا رہا ہوں. دوستوں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے کے اس گیٹ پر جس کا نام فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس گیٹ کے بازو ہی میں ایک اور مقام ہے جسے ٹیلہ زینب کہتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بالکل پیچھے ہی ٹیلہ زینب کو بہت بڑا بنایا جا رہا ہے. یہاں پر اس کی تعمیر چل رہی ہے. یہاں پر کیا ہوا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ مقام ہے، اس جگہ پر ٹیلہ زینب تھا اور یہاں پر یہ مین انٹرنس ہے. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں یہاں کی تمام زیارتیں آپ کو کروائی تھی. یہ مین انٹرنس ہے یہاں پر جہاں پر کلاک ٹاور لگا ہوا ہے. بالکل اس کے سیدھا راستہ ہمیں جانا ہے جہاں پر حضرت امام حسین کے خیمے لگے ہوئے تھے. تو پھر مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مین انٹرنس سے ہم لوگ یہاں پہ جا رہے ہیں لیفٹ سائڈ میں. دوستوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تعمیری کام چل رہا ہے اور بھی اس حرم کو کافی بڑا بنایا جا رہا ہے اور بھی کافی بڑا انشاءاللہ اس کو کریں گے. کام چل ہی رہا ہے لگاتار. تو پہنچ گئے ہیں ہم اس مقام پر جہاں پر کرب و بلا میں حضرت امام حسین اور آپ کے آل کے خیمے لگے ہوئے تھے. خیمے کہتے ہیں کیمپس کو. تو دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی یہاں پر ایک بہت بڑی عمارت بنا دی گئی ہے. چلیے اس کے اندر چلتے ہیں. اندر جاتے وقت یہاں پر بھی چیکنگ ہوتی ہے. میں اندر آ گیا ہوں. یہاں پر بھی جوتے چپل کے لیے سٹینڈ یہاں پر بھی ہیں اور یہاں پر بھی ہیں. تو اس کو بھی کافی خوبصورتی کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے. تو یہ چلیے اندر چلتے ہیں. ماشاء اللہ دوستیں آپ کو یہاں پر چھوٹے چھوٹے محراب نظر آ رہے ہوں گے. اس کے بارے میں نے یہاں سے معلوم کیا. یہاں پر بھی دیکھیے چھوٹے چھوٹے محراب ہیں. اب یہ کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں. یہاں پر آپ کو فوٹوز نظر آ رہے ہوں گے. ان سے میں نے پوچھا یہ ہے کیا، تو انہوں نے بتایا کہ اونٹوں کے اوپر دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے پالکی جیسے بنایا کرتے تھے. یہاں پر خواتین جو ہیں وہ پردے کے ساتھ رہا کرتی تھی. یہ اولڈ پینٹنگ ہے لیکن یہ اوریجنل ہے. دیکھیں اس میں آج بھی جو ہے ایسا معاملہ ہوتا ہے. کہیں کہیں پر اونٹ کے اوپر ایسا بنایا جاتا ہے جس میں حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام لوگ جو ہیں انہی پالکیوں میں آئے تھے. اور یہ جو پالکی ہے اونٹ سے نکال کر کے ان جگہوں پر رکھی ہوئی تھی. یہاں پر جو ہے 5 ہیں اور یہاں پر 5 ہیں. اس کو بھی کافی خوبصورتی کے ساتھ اندر سجایا گیا ہے ماشاءاللہ. تو ابھی یہاں پر میں خیمے گاہ کی طرف اندر جا رہا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکشن لیڈیز کا ہے اور یہ جینٹس کا ہے. تو یہاں پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ اندر کی آپ زیارت کریں. اندر ایک محراب بنایا گیا ہے پتھر سے. یہاں پر نمازیں بھی ہوتی ہیں. اور یہ خیمہ ہے محراب خیمہ امام حسین علیہ السلام. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ لگا ہوا تھا، یعنی آپ کا کیمپ لگا ہوا تھا. اس کے پیچھے ایک اور خیمہ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے خیمہ امام زین العابدین علیہ السلام. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کربلا کے میدان میں جہاں پر اہل بیت کا ہر فرد جو ہے میدان کربلا میں جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے. تو اس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھے اور یہیں پر آپ آرام فرما رہے تھے. آپ اتنے بیمار تھے کہ آپ کے جسم کی گرماہٹ تھوڑی دور تک بھی محسوس ہو رہی تھی. اور جو ہے حضرت امام زین العابدین اس قدر بیمار تھے اس حالت میں بھی جب تمام شہیدان کربلا، جب تمام اہل بیت شہید ہوتے گئے
جب تمام اہل بیت ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب تیار ہو رہے تھے جنگ کو جانے کے لیے، اس وقت آپ کے بیٹے، آپ کے فرزند، آپ کے جانشین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کہ ابا جان مجھے جانے دیجئے جنگ کے لیے، میں جا کر کے لڑوں گا۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ بیٹا ابھی بھی زندہ ہو اور باپ جنگ کے لیے جا رہا ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، ابا حضور مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ تو اس وقت میرے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، تمہیں نہیں جانا ہے جنگ کے لیے، تمہیں یہیں رہنا ہوگا اور تم سے ہی میری نسل جو ہے آگے بڑھنے والی ہے، یہ امام نے فرما دیا تھا۔ اور اس قدر وہاں پہ ماحول تھا کہ یہ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ ابھی خاندان اہل بیت کا ہر فرد شہید ہو جائے گا، لیکن میرے امام نے فرمایا تھا کہ اے بیٹے تمہیں ہی میری نسل کو آگے بڑھانی ہے، تم سے میرا خاندان آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا۔ تو میرے امام نے یہ فرمایا تھا تو حضرت امام زین العابدین صحیح سلامت اس خطرناک ماحول میں بھی کربلا کے میدان سے واپس لوٹے تھے۔ تو یہ وہی خیمہ ہے، اور ایک اور خیمہ یہاں پر نظر آ رہا ہے، یہ خیمہ ہے زینب الکبریٰ۔ یہ حضرت زینب جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں، یہ وہ خیمہ ہے جہاں پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ رہا کرتی تھی۔ آپ اس کی بھی زیارت کر لیں اندر سے۔ اندر کچھ مزار تو نہیں ہے، بس اس جگہ کو جو ہے جالیوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی میں آپ کو اندر کی زیارت کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں کوئی یہ بات نہ رہ جائے کہ اندر ہم نہیں دیکھ پائے۔ تو یہ دیکھیں، بس ایک جگہ ہے جس کی گھیرا بندی کر دی گئی ہے ان جالیوں سے تاکہ پتہ چل سکے کہ اہل بیت کے خیمے یہاں لگے تھے۔ اس عمارت میں کئی سارے خیمے موجود ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ایک خیمہ ہے، خیمہ ہے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جو صاحب ذاتے تھے حضرت قاسم، یہ ان کی خیمے گاہ ہے، وہ یہاں پر آرام کیا کرتے تھے۔ اور یہاں سے ہم جائیں گے تو وہاں پر حضرت امام حسین کا خیمہ تھا۔ وہاں پر ایک خیمہ موجود ہے۔ تو یہ جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ تھا، جو اس کے انٹرنس ہی میں ہمیں مل جاتا ہے۔ وہاں پر ایک خیمہ ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے خیمہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عورتوں کے لیے ہے، یہ جو ہے مرد حضرات کے لیے ہے۔ تو ناظرین آپ غور کر سکتے ہیں کہ چاروں طرف جو ہے جانثار موجود تھے اور بیچ میں حضرت امام حسین اور حضرت امام زین العابدین کو رکھا گیا تھا تاکہ ان کی اچھے طریقے سے حفاظت کی جائے۔ السلام علیکم۔ ساری دنیا کے شہر ایک طرف، لیکن جس شہر کی سیر آپ کو کروانے جا رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے مقدس اور سب سے زیادہ احترام کی جگہ ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی، ایک ایسی کھڑکی جسے 1400 سال سے بند نہیں کیا گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں اس شہر میں آنے کی تڑپ ہر مسلمان کو ہے؟ اس شہر میں ایسے کون سے مقدس مقامات ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چلیں اب نکلتے ہیں مدینہ منورہ کے ایک خوبصورت سفر پر۔ اس شہر کا آفیشل نام المدینہ المنورہ ہے۔ اس شہر کا قدیم نام یثرب تھا۔ اس شہر کی کل آبادی 16 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر مکہ مکرمہ سے 440 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کی اہمیت میں اضافہ تب ہوا جب ہمارے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ اسی وجہ سے یہ شہر دنیا کا سب سے خوش قسمت شہر ہے جہاں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقام ہے جہاں ہر مسلمان جانے کی اپنے دل میں تڑپ رکھتا ہے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اس شہر میں جانے کی تڑپ میں مزید اضافہ ہوگا۔ دوستو، دنیا کے کسی ملک یا شہر آپ ایک بار جائیں، اس کے بعد دوسری بار جائیں گے تو طلب کم ہوتی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں ایسی محبت کی فضا پیدا کی ہے کہ ایک بار جانے کے بعد آپ کی طلب اور تڑپ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
और ये सब इसी वजह से है कि हमारे प्यारे आका और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक इस शहर में मौजूद है। ये सिर्फ मेरे लिए एक वीडियो नहीं बल्कि मेरे मदीना शरीफ में गुजरे हुए दिनों के जज्बात हैं, जिन्हें लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। दोस्तों, दुनिया के शहर और ममालिक को कुदरती खूबसूरती और जदीद लाइफस्टाइल की वजह से खूबसूरत कहा जाता है, लेकिन रूहानी खूबसूरती और रूहानी सुकून इतना है कि दुनिया का हर खूबसूरत शहर इसके आगे फीका पड़ जाता है। इस शहर में ऐसे बहुत से मकामात मौजूद हैं जो इस्लाम की तारीख और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक से ताल्लुक रखते हैं। इस शहर का कुल रकबा 599 मुरब्बा किलोमीटर है। मदीना शरीफ में अरबों के अलावा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन और मिस्र के लोग बड़ी तादाद में आबाद हैं। मदीना शहर के मरकज में दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद मौजूद है, जिसे मस्जिद नबवी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक भी इसी मस्जिद में बनाया गया है। मस्जिद नबवी एक वसी और अरेज मस्जिद है जो लाखों नमाजियों को एक साथ नमाज पढ़ने की गुंजाइश फराहम करती है। मस्जिद नबवी की मौजूदा तोसी के बाद इसमें 10 लाख से जायद नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन हज या रमजानुल मुबारक के महीने में 20 लाख तक भी लोग नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि इस मस्जिद के चारों इतराफ में बहुत बड़े सहन बनाए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत के लिए लाखों मुसलमान सारा साल आते हैं। मर्द हजरात बाबुल इस्लाम गेट से दाखिल होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। ये वो मकाम होता है जहाँ पलकें भी बड़े अदब से उठाई जाती हैं। ये गेट मस्जिद का कदीम तरीन गेट है। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को सलाम करते हैं। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का रोजा और फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के रोजे को सलाम करते हुए बाहर चले जाते हैं। ये मस्जिद का वो हिस्सा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाया गया था। मस्जिद नबवी का सबसे अहम हिस्सा रियाजुल जन्ना है, जिसे जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। अहादीस के मुताबिक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक के एरिया को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। ये मस्जिद का सबसे मुकद्दस मकाम है। इस जगह 8 पिलर्स मौजूद हैं, जिनकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। इन पिलर्स को बाकी पिलर्स से बहुत अलग रखा गया है। नंबर 1 पिलर, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे। दूसरा पिलर, जिसे हनाना कहा जाता है, जहां एक दरख्त था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोता था। तीसरा पिलर, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा करने वालों को कबूल फरमाते थे। चौथा पिलर, ये वो जगह है जहां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। 5वां पिलर, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ वफूद मुलाकात के लिए आते थे। 6वां पिलर, जहां जबरील अलैहिस्सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आते थे। 7वां पिलर, ये वो जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। और 8वां पिलर कब्र मुबारक के करीब वाक़या है। रियाजुल जन्ना में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने परवरिश भी पाई। लाखों ज़ायरीन इस जगह की जियारत के लिए आते हैं और नफल अदा करते हैं। इस जगह आने के लिए आपको नुस्ख की एप्लीकेशन से टाइम लेना पड़ता है, जिसके बाद आप 30 मिनट के लिए नफल अदा कर सकते हैं। दोस्तों, इस मस्जिद की तामीर 622 ईस्वी और यकम हिजरी में की गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए तो मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। इसकी तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हिस्सा लिया। इब्तदाई तौर पर इसका ढांचा खजूर की टहनियों से तैयार किया गया, यहाँ तक कि इसकी छत भी खजूर की टहनियों से डाली गई। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, जब आप आकाए दो जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर खड़े होंगे तो बिल्कुल आपके पीछे एक खिड़की मौजूद है जो 1400 साल से कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि एक अजीम सहाबी ने अपनी बेटी से वादा किया था कि ये खिड़की कभी बंद नहीं होगी और ये आज भी खुली है। ये अब तक का सबसे बड़ा और तवील वादा है। सन 17 हिजरी में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मुसलमानों ने कसीर फतुहात हासिल की, जिससे मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ तो मस्जिद की तौसीक़ की जरूरत पेश आई। जिस जगह आज मुसलमान खड़े होकर सलाम पेश करते हैं, ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा हिफ्जा बिनते उमर का हुजरा मुबारक था और मस्जिद की तौसीक़ भी इसी जानब करना जरूरी थी। मसला ये था कि सैयदा हिफ्जा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हिजरा हाली करने के लिए आमादा किया जाए, जिसमें इनके शोहर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया करते थे।
जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बेटी को हुजरा हाली करने का कहा तो आप फूट फूट कर रोने लगी और इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुदाहलत की तो हजरत हिफ्जा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक शर्त रखी कि इनके लिए एक खिड़की रखी जाए जहां से वो अपने महबूब शोहर की कब्र मुबारक को देख सकें और वो कभी बंद ना हो। चुनाचा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये शर्त मान ली। 1400 साल से ये खिड़की आज तक खुली है। जो भी इस मस्जिद का मतवल्ली बना है इसने इस खिड़की की देखभाल की और इस वादे को भी आज तक निभाया जा रहा है। इस्लाम से पहले ये शहर यसरब कहलाता था। ये एक तजारती कस्बा था। ये शहर एक जमाने में अरब यहूदियों का मरकज भी था, लेकिन आज ये शहर मुसलमानों का मरकज बन चुका है। इस शहर की गलियां बाजार आपको साफ सुथरे नजर आएंगे। सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत से कदीम मोहल्ले अब तक खत्म कर दिए हैं और ज्यादातर होटल बनाए जा रहे हैं। ये गलियां बनु हाशिम कबीले की थीं, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब वाक़या हैं। इन गलियों में मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुजरा करते थे, लेकिन इनमें से बहुत सी गलियां खत्म हो चुकी हैं। आज बस मेरे पास ये वीडियो की शक्ल में मौजूद हैं, जो 2017 में बनाई गई थी। मस्जिद नबवी की अंदरूनी इमारत के 42 दरवाजे हैं, जिनमें कुछ दरवाजे औरतों के लिए और कुछ मर्दों के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। 11 नंबर दरवाजे से 17 नंबर तक के दरवाजे औरतों के लिए हैं और दूसरी तरफ 23 नंबर दरवाजे से 31 नंबर तक के दरवाजे भी औरतों के लिए हैं। आप जब भी अपनी फैमिली के साथ जाएं तो कोशिश करें इन दरवाजों के पास होटल लें, ताकि औरतों को मस्जिद आने में आसानी रहे। इसके अलावा औरतों की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अमूमन इशा की नमाज के बाद खोली जाती है, जो 11 नंबर गेट और 31 नंबर गेट से दाखिल हो सकती हैं, जिसमें वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली जानब तक ही जा सकती हैं। मस्जिद के बैरूनी सेहन पर भी दरवाजों के नंबर लगाए गए हैं, जो 301 से शुरू होते हैं और 370 तक जाते हैं। शॉपिंग की ज्यादा मार्केट आपको बैरूनी गेट 328 से 340 की तरफ नजर आएगी। यहाँ फास्ट फूड के ब्रांड और शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं। सोने की दुकानें ऐसी बड़ी होती हैं जैसे सोना फ्री बेचा जा रहा हो। ज्यादा रौनक भी आपको इन गेट्स पर ही नजर आएगी। मस्जिद के तीनों इतराफ में होटल बनाए गए हैं, जो 4 कितारों पर मुश्तमिल हैं। फ्रंट पर होटल 5 स्टार हैं, जिनका आम दिनों में किराया 700 रियाल से 1500 रियाल तक एक रात का होता है। इसके पीछे 3 स्टार होटल और इकोनॉमी होटल हैं, जो तकरीबन 300 रियाल से 400 रियाल तक मिल जाते हैं। मस्जिद के बैरूनी गेट 362 पर जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान मौजूद है, जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करने के बाद बिल्कुल सामने नजर आता है। यहाँ आपको अहम बात बताता चलूं, जब आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करने के बाद बाहर आएंगे तो दीवार पर एक खिड़की का अलग डिजाइन नजर आएगा, जो इस बात को जाहिर करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक इस सिमत में हैं। आप इसके सामने खड़े होकर और अपना रुख खाना काबा की तरफ करके अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि ये अल्लाह से दुआ करने का बेहतरीन मुकाम है कि आप अल्लाह के महबूब के कदमों में खड़े हों और अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। चलें अब चलते हैं जन्नतुल बकी की तरफ। ये आमतौर पर फजर और असर के बाद खोला जाता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात की कब्र मुबारक सबसे पहले आएंगी। इसके बाद आपके दाएं तरफ जहां जंगला लगाया गया है, हजरत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मुबारक है, जिनके साथ इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद हैं। ये सब देखने के बाद बेसाख्ता आंसू आंखों से जारी हो जाएंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक भी इस जगह मौजूद है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल सामने वाक़या है। दोस्तों, ये कब्रिस्तान भी मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस है। 10,000 से भी ज्यादा सहाबा कराम की कब्र मुबारक इस जगह मौजूद है। चले अब चलते हैं 360 नंबर गेट से 312 गेट की तरफ, जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की रहाइश गाह भी थी। अब इस जगह मस्जिद बना दी गई है और इसे अबू बकर सिद्दीक मस्जिद भी कहा जाता है और इसके साथ ही बिल्कुल हजरत अली की मस्जिद भी मौजूद है। दोस्तों, 310 नंबर गेट की तरफ एक बादलों की शक्ल की आपको मस्जिद नजर आएगी, जिसे मस्जिद गमामा कहा जाता है, जहां बारिश के लिए दुआ की गई थी। दोस्तों, जब आप 334 नंबर गेट से मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो सामने आपको एक पहाड़ नजर आएगा। इसे ओहद पहाड़ कहा जाता है। ओहद पहाड़ को जन्नत का पहाड़ भी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ओहद से और ओहद को मुझसे मोहब्बत है। 20 रियाल में टैक्सी आपको यहाँ ले जाएगी, जिसे शोहदा का मुकाम भी कहा जाता है। इस जगह गज़वे ओहद हुई थी,
जिसमें बहुत से सहाबा कराम शहीद हुए, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दिल अजीज चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी शहीद हुए, जिनकी कब्र मुबारक इस अहाते में बनाई गई है। दोस्तों, इसी गज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। और ये पहाड़ी वो जगह है जहाँ तीर अंदाज सहाबा इकराम मौजूद थे। चले यहाँ से आपको लेकर चलते हैं मस्जिद कुबा, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से हिजरत की तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह क़याम किया। इस मस्जिद की तामीर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया। इस मस्जिद की भी अहमियत बहुत ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर हफ्ते को इस मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ लाते थे। ये मस्जिद नबवी से 3 किलोमीटर के फासले पर है। आप अगर 310 गेट से बाहर निकलेंगे तो पैदल मस्जिद कुबा जाने वालों के लिए बहुत खूबसूरत रास्ता बनाया गया है, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन ट्रैक भी कहा जाए तो गलत ना होगा। एक रवायत के मुताबिक मस्जिद कुबा में 2 नफल नमाज अदा करने का सवाब एक मकबूल उम्रे के बराबर है। मस्जिद कुबा से 5 मिनट के फासले पर हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बाग मौजूद है, जहां लोग खजूरों के लिए भी आते हैं। इस बाग की अजवा खजूर सबसे ज्यादा फेमस है। दोस्तों, इस बाग से निकलने के बाद कुछ ही फासले पर बेरा गर्ज है। ये कुआं भी बहुत अहमियत का हामिल है। कुछ रवायात से पता चलता है कि इस कुएं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाबे दुहैन भी मौजूद है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुस्ल के लिए भी वसीयत की थी कि इस कुएं का पानी इस्तेमाल किया जाए। इस जगह बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं। दोस्तों, इस कुएं को जन्नत का कुआं भी कहा जाता है। आप जब भी मदीना शरीफ आएं तो इस कुएं की जियारत जरूर करें और आप पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों, आप अगर मदीना शरीफ की तारीख को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो 310 नंबर गेट से आप उमर बिन हत्ताब रोड पर चले जाएं, जहां हिजाज स्टेशन के पास एक म्यूजियम मौजूद है। ये वही स्टेशन है जो सल्तनत उस्मानिया के दौर में अब्दुल हमीद ने इस्तांबुल से मदीना ट्रेन चलाई थी, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस म्यूजियम में आप कदीम दौर का मदीना देख सकते हैं। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बहुत सी चीजें मौजूद हैं। चले यहाँ से चलते हैं मस्जिद जुमा की तरफ। ये वो मस्जिद है जहाँ इस्लाम का सबसे पहला जुमा अदा किया गया था और इसी वजह से इसका नाम मस्जिद जुमा है। ये भी मस्जिद कुबा के करीब वाक़या है। दोस्तों, आप जानते होंगे खाना काबा से पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे और बैतुल मक़दस ही मुसलमानों का अव्वल किबला था। 16 से 17 महीने मदीना शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की जानब नमाज अदा की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि किबला खाना काबा बन जाए। अब ये मुमकिन नहीं था कि अल्लाह के महबूब की ख्वाहिश हो और अल्लाह पूरी ना करें। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हालत नमाज में वही नाजिल हुई और किबला तब्दील करने का हुक्म आ गया और नमाज में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला तब्दील कर लिया और खाना काबा की जानब नमाज अदा की। दोस्तों, ये वही जगह है जिसे मस्जिद किबला तैन कहा जाता है, मतलब 2 किबले वाली मस्जिद। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा है, जो एक रिपोर्ट के मुताबिक 97% के करीब है, क्योंकि सऊदीया की हुकूमत ने तालीम के शोबे में बहुत तरक्की की है और सऊदीया के 2030 विजन प्रोग्राम का एक मंसूबा ये भी है कि पूरे मुल्क के लिटरेसी रेट को 100% तक लेकर जाया जाए। मदीना मुनव्वरा में मौसम ज्यादातर गर्म रहता है, यहाँ तक कि दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। इसी वजह से मस्जिद के सहन में आपको ऐसे पंखे देखने को मिलेंगे जो हवा के साथ पानी भी फेंकते हैं, जिन्हें मिस्ट फैन कहा जाता है। मस्जिद का सहन गर्मियों में इतना गर्म होता है कि पाँव रखना भी बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आपने अक्सर सऊदीया से आने वालों से अलबेक का तो सुना होगा। मदीना शरीफ में भी इसकी 2 ब्रांचेस बनाई गई हैं, जिसमें एक ब्रांच 365 गेट की तरफ है और दूसरी ब्रांच 330 गेट के सामने तैयबा मॉल के अंदर बनाई गई है। तैयबा मॉल में लोग शॉपिंग के लिए भी बहुत ज्यादा आते हैं, जहां आपको अक्सर औरतों के अबाई की दुकानें नजर आएंगी। बांग्लादेशी, इंडियन और पाकिस्तानी ज्यादातर होटलों में काम करते हैं। रूम की सफाई करने वाला तकरीबन 1000 रियाल से 1500 रियाल तक सैलरी लेता है, जिसमें खाना और रहाइश होटल की होती है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सी ज़ियारतें मदीना शरीफ में मौजूद हैं, जो हम आपको एक और वीडियो में दिखाएंगे। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी आपको सबसे ज्यादा सुकून इस शहर में आकर मिलेगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे बार बार इस शहर में आने की तौफीक दे, आमीन। वीडियो देखने के बाद एक बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़िएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। देखिए, खुशबू से मौला अली की बारगाहों की दीवारों को जो है खुशबू लगाई जा रही है। सुभान अल्लाह।
देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है, इसके बिल्कुल आगे ही में ये काफ़ी बड़ी गली है, अंदर मार्केट आपको हर तरह का मिल जाएगा। और ये जो दहलीज आप देख रहे हैं ये तमाम के तमाम सोने की परत ऊपर चढ़ाई हुई है और इसके ऊपर जो है गिलास डाल दिया गया है ताकि इसको ज़्यादा लोग टच ना कर सकें और खुरेद ना सकें। यहाँ पर भी गिलास है। ये मस्जिद है मौला अली शेर खुदा की बारगाह के। ये मौला अली की बारगाह की बिल्ली माशाअल्लाह। तो मौला अली के शहर के ये गलियां हैं, ये नजफ़ अशरफ की मुबारक गलियां हैं और यहाँ से जो है सबसे मेन एंट्रेंस बनाया गया है मौला अली की बारगाह में एंटर होने के लिए। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं दुखुलुर रिजाल और दुखुलुन निसा, यानी यहाँ पर मर्द हजरात एंटर करेंगे, वहाँ से जो है औरतें एंटर करेंगी। सबसे पहले चेकिंग होगी, फिर अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो यहाँ पर चेकिंग की जाती है मिलिट्री के द्वारा। तो बैग्स चेकिंग के लिए स्कैनर मशीन यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ से फिर हम एंटर हो गए हैं। अंदर एंटर होते ही मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये नूरानी गुंबद, ये सुनहरा गुंबद और मीनार हमें नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये गुंबद और मीनार भी जो है सोने की ही परत इस पर चढ़ाई गई है। ये अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ का क्या माहौल है, यहाँ के दुकान वगैरह कैसे हैं, यहाँ की गलियाँ कैसी हैं और अंदर दरगाह शरीफ कैसी है, तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में देखते रहेंगे। और ये सवारियाँ यहाँ पर मौजूद हैं ये बैग्स ले जाने के लिए। और ये देख सकते हैं आप, जो ख़वातीन चल नहीं पाती तो उनके लिए ये फ्री सर्विस है यहाँ पर। यहाँ से लेकर के वहाँ रोज़ा मुबारक तक जो है आपको ये गाड़ी जो है पहुँचा देती है। और अंदर दाखिल होने के बाद दोनों तरफ दुकान वगैरह नज़र आती हैं और बीच में जो है ये पोल्स लगे हुए हैं, ये पिलर्स जिसमें फ़ैन्स लगे हुए हैं। गर्मी वगैरह के मौसम में तो ये काफ़ी मददगार साबित होते हैं। और पानी पीने के लिए जगह जगह पर इस तरह के नल लगाए हुए हैं। यहाँ की दुकानें वगैरह भी आप देख सकते हैं। दुकानें सिर्फ इस तरफ ही नहीं बल्कि आपके रोज़े मुबारक के आगे के हिस्से में भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, उसकी भी एक झलक मैं आपको आगे दिखाऊंगा। दोस्तों, अभी जो है नजफ़ शरीफ में सिर्फ 5:30 बजे हैं और आप यहाँ का माहौल देख सकते हैं। अंधेरा मुकम्मल हो गया है, मगरिब का वक्त ख़त्म हो गया है। 5:30 के अंदर अंदर मगरिब का वक्त तक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। देखिए, वहाँ पर मेन एंट्रेंस में एक चेकिंग हुई, फिर यहाँ पर भी एक चेकिंग होती है। यहाँ पर दुखुलुन निसा औरतों के लिए, यहाँ पर दुखुलुर रिजाल यहाँ पर मर्दों के लिए, फिर दूसरी चेकिंग यहाँ पर होती है अंदर दाखिल होने से पहले। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस होता है, बैग स्कैन की जाती है और लोगों को चेक किया जाता है। अभी यहाँ पर हम लोग आ गए हैं तो अंदर हम दाखिल हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर से भी हम सीधा दाखिल हो सकते हैं मौला अली की बारगाह में, लेकिन मैं आपको आसपास का इलाका दिखाता हूँ। पहले देख लीजिए कि चारों तरफ कैसा है, फिर अंदर चलते हैं। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन या अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। तो आप राइट साइड में भी देख सकते हैं हरम शरीफ काफ़ी बड़ा किया गया है। कितना बड़ा किया गया है मैं आपको आगे बताऊंगा, आप देख कर के हैरान हो जाएंगे। अभी हम लेफ़्ट साइड से चलते हैं और देखते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर जो है मौला अली के दरबार की चंद तस्वीरें ये लोग दिखा रहे हैं। माशाल्लाह, ये तस्वीरें आप अक्सर जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में आपने देखी होंगी। जो ओरिजिनल जो है यहीं के फ़ोटोग्राफ़र्स ने जो है उसे शूट किए हैं माशाल्लाह। तो स्क्रीन जो है यहाँ पर प्ले होती ही रहती है और ये काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। तो अभी इस जानिब में आया हूँ
यहाँ पर भी एक गेट है, वहाँ बीच में भी एक गेट है। तो अंदर दाखिल होने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर दरवाज़े गेट्स वगैरह लगाए हुए हैं, क्योंकि शहर के चारों तरफ से भी जो है आप मौला अली की बारगाह में दाखिल हो सकते हैं। बारगाह के बाहर के हिस्से में जो है कुछ इस तरीके के शेड्स डाले गए हैं जो ये वाटर प्रूफ होते हैं, तो ताकि गर्मी और ठंडी वगैरह में लोग आसानी के साथ छाँव में नीचे बैठे रहें, इसलिए ये ऊपर डाले गए हैं। और नीचे जगह जगह पर इस तरीके के क़ालीन बिछाए गए हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं और ज़िक्र वगैरह करते हैं और आराम करते हैं। और ये जो काउंटर्स हैं ये जूते चप्पल जमा करने के लिए यहाँ पर भी हैं और काफ़ी सारे आगे भी लगे हुए हैं। क्योंकि अभी मगरिब के बाद का वक्त है तो काफ़ी लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। बाहर ही इतनी भीड़ है तो अंदर और ज़्यादा होगी, इसीलिए मैं जो है अंदर की शूटिंग आपको रात में करके दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ी बहुत आसानी हो ज़ियारत में। अभी दरबार के आगे के हिस्से में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी ख़रीदारी के लिए, आप देख सकते हैं। और ये हिस्सा बिल्कुल दरबार ही से लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है, इसके बिल्कुल आगे ही में ये काफ़ी बड़ी गली है, अंदर मार्केट आपको हर तरह का मिल जाएगा। तो नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह यहाँ से शुरू होती है। अब इसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वहाँ पर भी थोड़ी तामीर चल ही रही है, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ से शुरू होती है और देखिए वहाँ को ख़त्म होती है। शायद जूम करके भी मैं आपको नहीं बता पाऊँ कि कहाँ पे एंड होती है। अभी अंदर का हिस्सा भी जो है काफ़ी खूबसूरत है। थोड़ी दूर के लिए मैं टाइम लैप्स दिखाता हूँ अंदर का हिस्सा कितना खूबसूरत दिखता है। तो दोस्तों अभी रात के तकरीबन 1 बजने वाले हैं और अभी भीड़ जो है काफ़ी कम हो गई है, इसीलिए मैं इस वक्त आया हूं ताकि अच्छे तरीके से शूटिंग भी हो जाए और आप जी भर के यहाँ की ज़ियारत कर सकें। माशाल्लाह मैं अभी एंटर हो रहा हूँ। ये देखिए ये तीसरी चेकिंग है, एक मेन एंट्रेंस में, एक सेंटर में होती है, फिर ये तीसरी सेम चेकिंग होती है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में दाखिल होने से पहले। तो फिर मैं यहाँ से दाखिल हो रहा हूँ मौला कायनात की बारगाह में। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नाज़रीन यहाँ पर जो है सामने अभी तामीरी काम चल रहा है, कुछ अंदर काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एक बड़ा सा बैनर लगाया हुआ है। सेम उसी तरीके का बैनर है जो कि पहले पुराना डिज़ाइन था, सेम ये उसी तरीके का बैनर इन्होंने लगाया है जैसे कि पुराना डिज़ाइन था। अगर ये बैनर नहीं होता तो गुंबद भी यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से नज़र आता। बहरहाल चलिए आसपास का यहाँ का नज़ारा करते हैं। तो दोस्तों अंदर आने के बाद जो है ये आपको छतरियाँ नज़र आती हैं। अभी रात के वक्त जो है बंद की गई हैं और काफ़ी बड़ी छतरियाँ आप देख सकते हैं, नीचे आदमी, और आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दिन में जो है कुछ इस तरीके का माहौल नज़र आता है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर, और रात के वक्त यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसे देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अंदर दाखिल होते हैं। माशाअल्लाह। तो यहाँ पर भी एक क्लॉक है, आप देख सकते हैं। या अली मदद, या अली मदद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो दरवाज़े आप देख रहे हैं और ये जो दहलीज़ आप देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम सोने की परत ऊपर चढ़ाई हुई है और इसके ऊपर जो है गिलास डाल दिया गया है ताकि इसको ज़्यादा लोग टच ना कर सकें और खुरेद ना सकें। यहाँ पर भी गिलास है, देख सकते हैं माशाअल्लाह। एक दरवाज़ा यहाँ पर है, और ये शानदार झूमर माशाअल्लाह।
اس سے پہلے کہ ہم لوگ اندر داخل ہوں، روضہ مبارک تو آپ کو نظر آ ہی گیا ہوگا، آپ ایک مرتبہ مولا علی کی بارگاہ میں جو مسجد ہے اس کی بھی زیارت کر لیں، یہ بھی کافی خوبصورت ہے ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں اس جانب سے بھی تو مسجد کے لیے یہ راستہ ہے، اوپر بھی دیکھیے آپ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھتے رہیے جب تک کہ آپ زیارت کرتے رہیں۔ یہاں سے بھی انٹر ہوتے ہیں مولا علی کی بارگاہ میں روضہ مبارک کی طرف، اور عقیدت مندوں کا ہجوم اور عقیدت مندوں کی عقیدت مندی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو یہ نظارہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ مسجد ہے مولا علی شیر خدا کی بارگاہ کے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مسجد کے آگے کا حصہ ہے، اور بھی کافی بڑی مسجد ہے، میں آپ کو اندر کا حصہ دکھاتا ہوں۔ اور جھومر دیکھیں ناظرین، کیا خوبصورت انداز میں ماشاء اللہ سبحان اللہ، اور ایسے ہزاروں جھومر یہاں پر لگے ہوئے ہیں مولا کائنات علیہ السلام کی بارگاہ کی اس مبارک مسجد میں، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی مسجد کا حصہ ہی ہے ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی آپ کی طرح زیارت کریں ماشاء اللہ، اور جو ہے آپ کو بھی اس کا ثواب ملے برابر۔ اور یہ جو ہے یہاں کا پاور باکس ہے، اس کو بھی کافی خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے، یہ دیکھیے ماشاء اللہ۔ ناظرین، یہاں پر جو ہے اس پلرز میں بھی اے سی لگے ہوئے ہیں، یہ اسی طریقے کا انداز تعمیر ہے جو کہ مسجد نبوی شریف میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، پلرز میں جو ہیں اے سی لگائے گئے ہیں، تو اسی کا انداز یہاں پر بھی اپنایا گیا ہے، اور ہر پلرز میں جو ہے اے سی لگے ہوئے ہیں، اور دربار میں بھی فلی ایئر کنڈیشن ہے، چاہے آپ کربلا شریف چلے جائیں، بغداد شریف چلے جائیں، یہاں کی بارگاہیں دیکھ لیں۔ تو چلیے ابھی مولا کائنات کی بارگاہ کی طرف چلتے ہیں، اور آپ کو میں مولا علی کا روضہ انشاءاللہ دکھاؤں گا، آپ زیارت کریں گے۔ یہاں پر جو ہے ایسے چھوٹے جالی بھی لگے ہوئے ہیں جس میں گرین لائٹ جلایا ہوا ہے، لوگ اس میں بھی نیاز ڈالتے ہیں۔ میں نے یہاں کے لوگوں سے پوچھا جو یہاں پر ورکرز ہیں کہ بھائی یہ ہے کیا کوئی زیارت ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی زیارت نہیں بلکہ صرف ڈیکوریشن کے لیے ایک ڈیزائن بنایا گیا ہے، کوئی زیارت یہاں پر ہے نہیں۔ بہرحال چلے آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر بھی ایک محفل سجی ہوئی ہے ماشاء اللہ۔ تو دیکھیے یہ دروازے بھی جو ہیں مکمل سونے کے ہی ہیں، جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین، مولا کرم کیجیے، غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سب پہ کرم کیجیے سرکار، یا میرے مولا، یا مشکل کشا، حاجت روا شیر خدا مولا علی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ یہاں پر ہماری حاضری ہوئی۔ اللہ آپ سبھی کو بھی میں دعا کرتا ہوں مولا علی کی بارگاہ میں آپ سبھی کو اس مقدس بارگاہ کی اللہ تعالی حاضری نصیب کرے، سبحان اللہ۔ مولا علی کی گنبد کے اندر کا حصہ دیکھیے ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جو کلش اوپر لگایا گیا ہے بڑا ہی یونیک اسٹائل میں ہے ماشاء اللہ۔ ناظرین، چلیے آپ کو مولا علی کے مزار مبارک کی زیارت میں کرواتا ہوں، درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ دوسری جانب سے آپ زیارت کر رہے ہیں مولا علی کے روضہ مبارکہ کی، مولا علی شیر خدا کے روضہ مبارکہ کی زیارت، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ درود شریف پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام، صلی اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہاں پر بھی اس دیوار کے اس جانب خواتین زیارت کرتی ہیں، اور یہاں پر مرد حضرات، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا علی مدد۔
یا علی مدد. دروازے میں داخل ہونے کی جگہ یہ چاروں طرف جو ہے گرین کلر کے جھومر لگائے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی اور جو ہے عورتوں کی جانب بھی, اور بیچ میں یہ بڑا سا جھومر جو ہے لگایا گیا ہے. دیکھیے خوشبو سے مولا علی کی بارگاہوں کی دیواروں کو جو ہے خوشبو لگائی جا رہی ہے. سبحان اللہ. یہ مولا علی کی بارگاہ کی بلی ماشاء اللہ. ناظرین آپ ہی لوگوں کو دیکھ رہی ہے, دیکھیے ماشاء اللہ. ایک یہاں پر بھی ہے. یہ بلیاں مولا علی کی بارگاہ ہی میں رہتی ہیں, اور کافی سارے کبوتر بھی ہیں یہاں پر. دیکھیں وہاں پر کبوتر اڑ رہے ہیں. یا علی مشکل کشا. یہ شاید فاؤنٹین بنا رہے ہیں, اور اس میں تھوڑا سا کام باقی ہے. جب فاؤنٹین تیار ہو جائے گا نا, یہ فوارہ, اور یہاں پہ لائٹنگز ہوں گی, اور بیچ میں مولا علی کا نام ہوگا اور پانی بہتا ہوگا, ماشاءاللہ کافی خوبصورت نظر آئے گا اس میں. اور یہ بھی جو ہے بارگاہ مولا علی ہی میں موجود ہے.